સેલવાસ ખાતે નવા લેબર કોડ પર 2 દિવસીય વર્કશોપનું ઉદ્ઘાટન. કલા કેન્દ્ર સિલવાસા માંગ નવા લેબર કોડ પર 2 દિવસીય વર્કશોપનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પ્રશાસનના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના સહયોગમાં ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી સિલવાસા કેમ્પસ આ વર્કશોપનું આયોજન કરી રહ્યું છે. ડીએનએચ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા, જીએનએલયુ ડાયરેક્ટર પ્રોફેસર ડોક્ટર એસ શાંતાકુમાર, ભારત સરકારના ડેપ્યુટી ચીફ લેબર કમિશનર ડોક્ટર ઓમકાર શર્મા, દાદરા અને નગર હવેલી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી અજીત યાદવ અને સિલવાસા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ મેન્યુફેક્ચરર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી અતુલ શાહે ઉદ્ઘાટન સત્રમાં હાજરી આપી હતી. તેમના ઉદ્ઘાટન સંબોધનમાં ડીએનએચ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા એ 1965ની કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ઝડપી ઔદ્યોગિકીકરણના ઇતિહાસને સંક્ષિપ્તમાં યાદ કર્યો અને કહ્યું કે આજે આ નાનકડો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ એક નોંધપાત્ર ઔદ્યોગિક હબ તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, જેમાં વિવિધ પ્રકારના ઉદ્યોગોમાં 1,20,000ની વધુ લોકોને રોજગારી મળે છે. તેમણે નોંધ્યું કે ભારત સરકારની પ્રગતિશીલ નીતિઓને કારણે દેશમાં બીજા ક્રમનો આ સૌથી નાનો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ રાષ્ટ્રીય પોલિએસ્ટર યાર્ન ઉત્પાદનમાં 70% હિસ્સો ધરાવે છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે આ વર્કશોપ સહભાગીઓને નવા લેબર કોડની બારીકીઓ સારી રીતે સમજવામાં મદદ કરશે. કલેક્ટર ભાનુપ્રભાએ ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી જીએનએલયુ ને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આવકાર આપ્યો અને જીએનએલયુને સિલવાસા ખાતે તેમના કેમ્પસની સ્થાપનામાં વહીવટીતંત્રના સંપૂર્ણ સમર્થનની ખાતરી આપી. તેમની પ્રારંભિક ટિપ્પણીમાં જીએનએલયુ ડાયરેક્ટર પ્રોફેસર ડોક્ટર એસ શાંતાકુમારે એવી આશા વ્યક્ત કરી હતી કે આ વર્કશોપમાં ચર્ચા વિચારણાથી સ્થાનિક ઉદ્યોગો અને મજૂરોને ફાયદો થશે. જીએનએલયુના ડાયરેક્ટરે ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીને સિલવાસા ખાતે સેટેલાઇટ કેમ્પસ લોન્ચ કરવા માટે આમંત્રિત કરવા બદલ માનનીય એડમિનિસ્ટ્રેટર શ્રી પ્રફુલ્લ પટેલનો ખૂબ આભાર માન્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે માનનીય એડમિનિસ્ટ્રેટરના નેતૃત્વ હેઠળ વહીવટીતંત્રના પૂરા દિલથી સમર્થન સાથે જીએનએલયુ સિલવાસા કેમ્પસ આ વર્ષે જુલાઈથી BA LLB અને LLM પ્રોગ્રામ્સ સાથે કાર્યરત થશે. તેમણે કહ્યું કે અમે આ નવા કેમ્પસમાં શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળું કાનૂની શિક્ષણ આપીશું. મને વિશ્વાસ છે કે જીએનએલયુ સિલવાસા કેમ્પસમાંથી પ્રથમ બેચ સ્નાતક થયા પછી તે રેન્કિંગમાં ભાગ લેવા માટે લાયક બનશે, ત્યારે તે દેશની ટોચની 5 કાયદાની યુનિવર્સિટીઓમાં ઉભરી આવશે. ડોક્ટર શાંતાકુમારે ઉમેર્યું હતું કે જીએનએલયુએ નવા કેમ્પસમાં 25% બેઠકો ડોમિસાઇલ વિદ્યાર્થીઓ માટે અનામત રાખવાની માનનીય પ્રશાસકની વિનંતી સ્વીકારી છે. તેમણે કહ્યું કે આજે હું સિલવાસાની ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાના આચાર્યો અને શિક્ષકો અને વહીવટીતંત્રમાં શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓને મળવાનો છું અને સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓમાં કાયદામાં કારકિર્દી વિશે જાગૃતિ લાવવામાં તેમના સહયોગ માટે વિનંતી કરવાનો છું. જીએનએલયુ સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ જીએનએલયુ સિલવાસા કેમ્પસનો મહત્તમ લાભ મેળવી શકે તે માટે તેમને જરૂરી તમામ મદદ કરવા અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ. ડોક્ટર શાંતાકુમારે એમ પણ કહ્યું હતું કે માંગ ઉચ્ચ શિક્ષણ દ્વારા સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં અને તેમના દ્વારા તેમના સમગ્ર કુટુંબના જીવનમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવવાના માનનીય વહીવટકર્તાના વિઝનને અમે શેર કરીએ છીએ અને તેને સાકાર કરવા. સિલવાસાથી સમીર ગોહિલની રિપોર્ટ. आज हमारा पूरा दादरा नगर हवेली इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है और पॉलिस्टर के लिए तो और यहाँ पे 70% यार्न यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ का लेबर डिपार्टमेंट और जीएनएलयू द्वारा किया जा रहा है. हमारा तमाम उद्योग जगत इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद अदा करता है और इससे एक बहुत अच्छी अवेयरनेस हम लोगों के बीच में आएगी और हम फ्यूचर में ये सबको इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज हमारे जो कर्मचारी लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल ये होने वाला है. तो हम इस सब के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहेगा. સૌથી પહેલાં તો હું જીએનએલયુ સિલવાસા કેમ્પસ અને લેબર ડિપાર્ટમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનને ધન્યવાદ આપું છું કે એમણે આ એક સેશન જે નવા કોડ લેબરના આવ્યા છે એના માટે રાખ્યો છે અને આઈ એમ શ્યોર કે ભાઈ જે 200થી વધારે પાર્ટિસિપન્ટ છે ઇન્ડસ્ટ્રીના અહીંયા અને જે રિલેટેડ ટુ HR અને લેબર સાથે કામ કરી રહ્યા છે એને જે નવા કોડ આવ્યા છે એને સમજવામાં એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવામાં બહુ જ મદદ કરશે અને જે બી લો છે એને ફોલોઅપ કરવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીને બહુ લાભ થશે.
ये जो कार्यशाला वर्कशॉप 2 दिन की यहाँ आयोजित की गई है JNLU के सिलवासा कैंपस में, ये उन लोगों को ध्यान में रखते हुए रखी गई है जिनको इन न्यू लेबर कोड्स की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और सिलवासा दमन-दीव का जो एरिया है वो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, जहाँ आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी फेडरेशन हैं उन सभी को ये जानकारी हो न्यू लेबर कोड्स की। और न्यू लेबर कोड्स जो आए हैं उन्होंने जो 29 लेबर लॉज थे एग्जिस्टिंग, उनको कंसोलिडेट करने का काम किया है। हालांकि ये प्रयास काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। यदि हम देखें तो सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन ने भी इसके लिए रिकमेंड किया था कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉज है उसको कम किया जाए। तो न्यू लेबर कोड्स ने इस मल्टीप्लिसिटी को कम करने का एक प्रयास किया है। तो हमने उन सभी यहाँ के आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके HR ऑफिसर्स जो इन लेबर लॉ से डील करते हैं, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन जिनको इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, उन सभी को आमंत्रित किया है ताकि वे इन सेशन का लाभ ले सकें। और हमारा भविष्य में भी ये प्रयास रहेगा कि ऐसे सभी स्टेक होल्डर्स जिनका इन लेबर कोड्स को जानना बहुत आवश्यक है, उन तक हम ये जानकारी पहुंचा सकें। ऐसे कई और भविष्य में हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें ताकि हर एक वर्ग को इसका लाभ मिले। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दादरा नगर हवेली एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ में लेबर डिपार्टमेंट को कि जो इतना महत्वपूर्ण विषय पे आज ये ट्रेनिंग रखा। इससे इंडस्ट्री को जो फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे रहेंगे, क्योंकि जो भी न्यू लेबर कोड्स आ रहे हैं इस पे हमको जानकारी प्राप्त होगी और जो भी हमारे पास विधि संगत तरीके से हम इसको अपने वर्कशॉप पे इसको अलाउ कर सकते हैं। अलाउ करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारी त्रुटियां रहेंगी उसको हम लोग इसको अच्छे से वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और ये ट्रेनिंग मैं आशा करता हूँ कि जितने यहाँ पे आए हुए मैनेजर्स हैं, डाउन द लाइन टीम है और जितने यहाँ पे न्यू एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये सीखेंगे और हम अपने यहाँ अपने और कारखाने में लेबर्स के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमको और हमारे कारखाने के दोनों के लिए भी ये उपयोगी रहेगा। सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कैसे यहाँ पे हमको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसका उपयोग करना है और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करें कि हमारे आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई त्रुटि या खामी हमको न रहे। तो ये हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही हमको ये उपयोगी सिद्ध होने वाला है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर किसी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या नियम्स हैं और रूल्स रेगुलेशन हैं। तो ये सब हमको इस ट्रेनिंग के बाद हमको प्राप्त होगा। तो उत्साह और ये बहुत खुशी और उत्साह की बात है कि आज JNLU कैंपस का सिलवासा चैप्टर का एक पहला प्रोग्राम हो रहा है। अभी इस कैंपस को आने में थोड़ा वक्त लगेगा सेशन स्टार्ट होने में, मगर सेशन स्टार्ट होने से पहले ही कैंपस ने अपनी यहाँ पे गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। तो एक लेबर लॉज पे, न्यू लेबर कोड्स पे जो 2020 में पारित हुए थे, उनके ऊपर वर्कशॉप करी जा रही है। सिलवासा चुनने का ये रीज़न था कैंपस आने के बाद, और ये कोड्स को डिस्कस करने का मेजर रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं और यहाँ पे लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। बट क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को यूजुअली लॉज के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, और होती भी है तो वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होती है। तो ये रिक्वेस्ट हमने भी JNLU कैंपस से करी थी कि आप एकेडमिक सेशन तो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक वर्कशॉप हमारे यहाँ के बड़े फर्म्स के लिए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए करिए। और इसमें केवल HR मैनेजर्स और प्लांट मैनेजर्स और मैनेजमेंट ही नहीं है, यहाँ पे कुछ वहाँ के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आज की डेट में व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द लेबर लॉज, क्या रेगुलेशंस और बायलॉज क्या हैं। यूजुअली हम ब्यूरोक्रेट्स को तो पता रहता है मगर इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं पता होता है। इसके लिए आई रियली थैंक दी सिलवासा इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, DNH इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, जिनके सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज हमारे साथ आए। 2 दिन के लिए वो हमारे साथ रहेंगे, 2 दिन की वर्कशॉप में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। उनको जो क्लैरिफिकेशन, जो समझ चाहिए वो हम सब समझाएंगे। पूरी एकेडमिक टीम है JNLU कैंपस की और बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आए हैं हमारे साथ। इनफैक्ट डॉक्टर ओमकार शर्मा जी, जिन्होंने 2010 में उस टीम का हिस्सा बने थे जिन्होंने ये लेबर लॉज बनाए, और 10 साल तक मेहनत करके 2020 में जब ये लॉज बने, जब ये कोडिफाई हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब ये इनको गो हेड मिला, तब तक इनके साथ काम किया पूरी टीम के साथ, और आज वो हमारे बीच हैं। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। और मेरा सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जिन लोगों ने आज का इनॉग्रल सेशन मिस भी कर दिया है और अगर वो कल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। थैंक यू।